ओके, polar form के बाद देखिए अपन ने exponential form and polar form are the same one. For finding the exponential form we must know the polar form. What is the exponential form? In that one there is a formula e raised to I theta is something like to be cos theta plus I times sin theta. So therefore z is equal to r as it is, and in place of cos theta plus I sin theta we replace the value e raised to I theta. So once you know all the concept of that one, modulus, argument, the condition on argument, then afterward polar form, and this one is said to be the exponential form of complex number. So these are all about the theory part of that one. Now today we have taken example which are asked in JEE examination. है ना, ये टाइप के ज्यादातर एग्जाम में JEE में पूछने वाले क्वेश्चन हैं. तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, first question on the basis of that one is here. In that exercise, we started the first question. Question asked here: find the modulus and amplitude of the following complex number. Question is something like to here: find the modulus and argument of complex number. Argument of complex number. ठीक है, शॉर्ट में लिखिए इसको अपन. So how to find that one? उसमें पहला क्वेश्चन है. First question is something like to be 7 minus 5y. 7 minus 5y. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या निकालने का? मॉड्यूलस एंड देन we are interested to find out argument of that complex number. Modulus and argument of complex number. So first we write here, let it is nothing but z is equal to 7 minus 5y is there. First we write it is a complex number, z is equal to 7 minus 5y. Then afterward we can write here it is nothing but z is equal to 7 minus 5y. In that one here we can say that here if we compare with that one, इसको अगर अपन कंपेयर करेंगे a plus ib से, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? Here a is equal to 7 real part and b is equal to minus 5 is there. Okay, so first we have to find out the modulus and argument of complex number. We complete the question here. Modulus and argument of complex number. What is this one? First we find modulus of z. Modulus of z is nothing but under root of a square plus b square. So keep in that one. So what happens now? A square means 49, 7 ka square plus 25. Then what happens now? Addition is nothing but 9 5 plus 14, 4 to 6, and is nothing but 74 is there. So argument, so modulus of complex number mod z is equal to under root of 74. As we know that modulus म्हणजे काय? It is the distance of point from the origin. मतलब कैसा कि ये जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर की पॉइंट है ना? अभी तुमको मैंने कल बताया 7 minus 5y. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखने के बाद समझ में आना चाहिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल कौन से क्वाड्रेंट पे है. दोनों प्लस है तो पहले क्वाड्रेंट में, एक माइनस एक प्लस है तो दूसरा क्वाड्रेंट, दोनों माइनस है तो तीसरा क्वाड्रेंट. अब ये कहां पे? पहला प्लस दूसरा माइनस, मतलब ये चौथे क्वाड्रेंट में. यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर 7, -1. तो ये जो निकाले अपन ने मॉडुलस z क्या है? ये पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये निकाले अपन ने मॉड z. तो ये मॉड z कितना है? इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 74 इज देयर. ओके, so it is the modulus. Now we are interested to find out the angle theta made by that line with the positive direction of x-axis. So देखो इसमें angle कितना निकलेगा? Angle means argument. So we know that what is the formula for finding argument? सबको मालूम है. तो अपने लिखेंगे the amplitude, or it is also called as the argument of complex number. The amplitude or argument, इसको क्या बोलेंगे अपन? थीटा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या है? थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला तुमको डायरेक्ट मालूम है, tan इनवर्स ऑफ b by a is there. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b by a is there. Now how to write that one? Simply put up the values here. Theta, therefore theta is equal to tan inverse of b के प्लेस पे b की वैल्यू, b कितना निकाले तुमने? b कितना है आपके पास? -5 और a कितना है? -7. तो एक्चुअली कितना आ गया ये? tan इनवर्स ऑफ -5/7. बट
यालाच आपल्याला असं इथे स्क्वेअर आपण ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ -5/7 इज नथिंग बट minus tan inverse of pi by 7 is there. Why? Because there is one property. Because there is one property. Tan inverse of minus pi by 7 can be written as minus tan inverse of pi by 7 because there is one property. वो property क्या है? ये देखो ब्रैकेट में बोलता है. Since tan inverse of minus theta मतलब tan inverse के एंगल में अगर से minus theta रहा तो we can write here यहाँ पे लिखेंगे इसका रीजन. Since tan inverse of minus theta it can be written as minus of tan inverse of theta is there. It is the property of that one. ये property अपन पहले चैप्टर में देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में. तो अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि tan इनवर्स के एंगल में कोई माइनस आएगा. जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है tan इनवर्स के एंगल में माइनस थीटा है तो वी कैन राइट हियर ये माइनस को अपन बाहर निकालेंगे माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ थीटा. सो बाय प्रॉपर्टी amplitude or argument is nothing but theta is equal to minus tan inverse of pi by 7 is there. So it is the answer of that one. अब इसको further solve नहीं कर सकते अपन. We cannot solve further here. So it is the final answer of that one. So therefore finally we got here modulus of sub z 74 and theta is nothing but minus tan inverse of pi by 7 is there. So it is the method of finding modulus and argument of complex number. Okay, so now next complex number is something like to √3 plus √2i. बस इस पे कॉपी पेस्ट करेंगे अपन. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 plus √2i. ये है अपना. तो सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू √3 plus √2i. कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू √3 मिलेगा और b इज इक्वल टू कितना मिलेगा √2 मिलेगा. और एडिशन a स्क्वायर √3 का स्क्वायर मतलब कितना 3 और b मतलब √2 का स्क्वायर मतलब कितना 2. तो √3 plus 2 is nothing but √5 is there. Okay, modulus is nothing but √5 is there. Then argument आ गया इसका फार्मूला थीटा is equal to tan inverse of b by a. तो b by a मतलब b कितना है अपना b is nothing but our √2. तो √2 and a is nothing but 3 is there. √3 is there. So दोनों रूट में can we write this one ऐसा tan inverse of √2 by √3 है. हम लिखेंगे इसको tan inverse of a की रूट में under root of 2 by 3. So it is the final answer. अब इसकी आवश्यकता नहीं है बस इतना ही आंसर. So here mod z is equal to √5 and theta is equal to tan inverse of under root of 2 by 3 is there. हो गया. बस सब क्वेश्चन ऐसे ही कॉपी पेस्ट के मगर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है आप देखो अगला क्वेश्चन है -8 plus 59. Next question is -8 plus 59. So what we can write here? -8 plus 59. So ये कंपेयर करने के बाद a is equal to -8 और b is equal to 15 आ गया. एडिशन करो उसका स्क्वायरिंग और एडिंग. a स्क्वायर मतलब 64 और ये कितना 225 is there. तो 64 plus 225 it is nothing but I think so 5 and 4 9. ठीक है 4 and 2 5 and 4 9 6 and 2 8 आणि हे 2 290 मध्ये बाहेर काढलं तर 17 असते. मॉड्युलस ऑफ z इज नथिंग बट अंडर 17. आर्ग्युमेंट निकालो इसका सेम आर्ग्युमेंट क्या है b by a. b कितना है 15 और a कितना है -8 मतलब -15 by. अब प्रॉपर्टी बताइए tan इनवर्स के एंगल में माइनस है तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट है माइनस को बाहर निकाल सकते हैं अपन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ 15 by 8 इज देयर. ये प्रॉपर्टी क्या आती है सबको मालूम है. ये माइनस बाहर को निकला बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या है कि tan इनवर्स के एंगल में यदि कोई माइनस में रहता है तो हम उसको माइनस को बाहर निकाल के इसको हम tan इनवर्स ऑफ थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके सो दिस वन इट इज द क्वेश्चन नंबर 3. सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे फिर बाद में अपन आगे प्रोसीड करेंगे. अब समझो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ओनली 3 इज देयर. सिर्फ कितना आ गया 3 आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर. समझो अब सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ गया अपने पास 3. इसका निकालने का अपने को मॉड्यूलस और आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. सो हाउ टू फाइंड दैट वन? वेरी सिंपल वन. सबसे पहले z इज इक्वल टू 3. तो 3 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये द प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ पे 3 है मतलब रियल पार्ट 3 है
तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, तो वी कैन राइट हियर 3 एज अ 3 plus 0 i means in terms of complex number is there 3 can be written as 3 plus 0 i, so here real part is 3 and imaginary part is 0 is there. कंपेयर करा a किती भेटणार 3 आणि b किती भेटणार that is equal to 0 is there. kept in that one a का स्क्वायर ये हो गया 9, b का स्क्वायर 0, रूट 9 मतलब कितना हो गया 3, राइट है, मॉड्यूलस आ गया 3. नाउ अब इसका आर्गुमेंट निकालेंगे, सेम थीटा इज इक्वल टू tan cos ऑफ b बाय a. अब हम b बाय a की तरफ जाएंगे तो ये कितना आएगा, देखो b बाय a मतलब b कितना है 0, b इज नथिंग बट 0, 0 बाय 3, 0 बाय 3 सबको मालूम है 0 बाय 3 इज नथिंग बट 0 और tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू कितना 0 इज देयर, tan इनवर्स ऑफ 0 इट इज इक्वल टू 0 इज देयर. ओके, सो ये वैल्यू है इसकी 0 बाय 3, ये सबको मालूम है 0 by any number that is equal to 0 is there, और any number divided by 0, कोई अगर से 0 के कोई नंबर के नीचे डिवीजन में 0 आता है तो it is not defined, it goes to infinite, इसको बोलेंगे अपन not defined. ये आप बात याद रखो. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहे देखो यहाँ पे कि न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 3 है. ओके, 0 by 3 you got 0, बट अगर से इसका उल्टा हो गया 3 by 0 तो आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड, मतलब उसको अपन वैल्यू निकालेंगे पाई बाय 2 कुछ आएगा उसका. तो ये होगा इसका आंसर, ये होगा क्वेश्चन नंबर जो भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इसका क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे तुम. अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास 1 plus i, तो ये हो गया तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 plus i. ओके, लेट्स से इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर 1 plus i is there. आफ्टर कंपेयरिंग the real part is 1, so a is equal to 1. इमेजिनरी पार्ट कितना है i है, मतलब i का कोएफिशिएंट कितना है 1, सो हियर b इज इक्वल टू 1 इज देयर, है ना. कंपेयर करने के बाद a कितना मिलेगा, रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट में ये i से i कैंसिल, b इज इक्वल टू 1 इज देयर. तो यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1, सो यू गॉट हियर √2 इज देयर. एम्पलीट्यूड निकालेंगे इसका अपन, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, इट इज नथिंग बट it is nothing but it is the answer of that one. What is the answer of that one? It is nothing but tan inverse of b by b कितना है 1 और ये कितना है 1, 1 by 1 is equal to 1, और tan inverse of 1 की वैल्यू ये तुमको मालूम है कि नहीं पता नहीं, मगर इसकी वैल्यू है पाई बाय 4, है ना. अब इसको बताने के लिए तुमको एक अलग से देखना पड़ेगा. देखो कैसा, ये tan inverse of 1 की वैल्यू पाई बाय 4 कैसी, तो देखो इसको थोड़ा अपन थोड़ी अपनी जगह चाहिए, अपन इसको ऐसे लिखेंगे ये √2, ठीक है. देखो वैल्यू देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक समझो. फॉर एग्जांपल मींस वी कैन राइट हियर रेडियस में ये कितना हो गया पाई बाय 6, ये कितना हो गया पाई बाय 4, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2. these are the values of this one in terms of radians measure. Now अब अपने को देखने का tan की वैल्यूज, tan 0 0 सबको याद है, tan पाई बाय 6 1 by √3, tan पाई बाय 4 1, tan पाई बाय 3 √3 और tan 90 is not defined means infinite. अब ये जो वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4 क्यों, तो इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब कैसा, tan पाई बाय 4 मतलब 45 की वैल्यू कितनी है 1 है, ऐसा कि नहीं ना अपन ने, tan 45 मतलब tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1. इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब कैसा कि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4, उल्टा, है ना. इनवर्स मींस उल्टा, इट इज सेड टू बी द okay, so what we can say that it is nothing but tan inverse of 1 is nothing but pi by 4 is there. तो कैसा इनवर्स जब आएगा ना तो हम उस टाइम पे क्या लेंगे उल्टा लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल tan इनवर्स ऑफ √3 आया तो अपने को मालूम है tan पाई बाय 3 की वैल्यू √3, तो tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू कितनी पाई बाय 3 इज देयर. उल्टा इनवर्स में उल्टा जाएंगे अपन. तो यहां पे कितना आया tan इनवर्स ऑफ 1, tan 45 की वैल्यू 1, इस कारण से tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू 45 मतलब पाई बाय 4 और वी कैन से दैट हियर 45 डिग्री इज देयर. ओके, आई होप यू गॉट दैट वन. ये है इनवर्स की मेथड, उल्टा जाएंगे. पहले ऐसे जाते थे अपन
tan 0 0 tan pi by 6 1 by root 3 तो अब कैसा tan इनवर्स ऑफ 1 by root 3 की वैल्यू pi by 6 tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू pi by 4 tan इनवर्स ऑफ root 3 की वैल्यू pi by 3 and tan इनवर्स ऑफ infinity is nothing but not defined is there. Okay, चलो नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ जाएंगे. So next concept is something like to here. Next complex number है 1 plus I root 3 is there. So it is nothing but 1 plus I root 3. Compare करो a कितना मिला 1, b कितना मिला root 3. Kept in that one. So it becomes 1 का square 1 root 3 का square 3. 3 और 1 4 बाहर निकाल दो कितना 2. So take the arguments or amplitude of complex number. It is denoted by theta. Theta is equal to tan inverse of p by a. Kept in that one. इसमें रखने के बाद कितना आएगा? p है root 3 और a है 1. Finally we got the answer tan inverse of root 3. आ जाओ. अब बोलो इसकी वैल्यू कितनी है? ये tan pi by 3 की वैल्यू root 3. इस कारण से tan inverse of root 3 की वैल्यू pi by 3 लो या फिर 60 डिग्री. दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम. Okay, now we proceed to the next one. अब जरा अगला क्वेश्चन जरा अच्छे से देखेंगे अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर. देखो अगला क्वेश्चन में क्या है पूछने वाला 1 प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस 2i का स्क्वायर into 1 minus I is there. 1 plus 2i का स्क्वायर into 1 minus I is there. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन देगा ऐसा कोई नहीं. तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने के बाद वही सेम कहानी सेम तुम्हाला पुन्हा रिपीट करता येईल. कॉम्प्लेक्स नंबरला कंपेअर करायचा, a भेटणार, b भेटणार, नंतर मॉड्युलस आणि एम्प्लिट्यूड. तर सर्वात पहिले we have to solve these two number. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाना पड़ेगा. फिर उसके बाद अपने को उसका मॉड्युलस और आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा. है ना. कभी-कभी ऐसा डायरेक्ट ऐसा थोड़ा बहुत तो देता है इसमें सॉल्व करने के लिए. So we have to solve this very simple one. How to solve? See here now. So first we solve it. Let we denote it is by z. 1 plus 2i square into 1 minus I is there. Now simply it is nothing but a plus b whole square. A plus b whole square का expansion सबको मालूम है. बोलो क्या है a plus b whole square? a का square 1 plus 2ab 2i into 1 2 into 2 है 4i plus b square मतलब कितना 4i का square into 1 minus I is there. Now it is nothing but 1 plus 4i I square की वैल्यू कितनी -1 सबको मालूम है. I is equal to root -1. I is also called as a iota. ये बात याद रखो. I मतलब ये क्या है? iota है इसलिए उसका डिनोटेशन I से है. I का फुल नेम अगर से देखेंगे तो I is nothing but it is your iota. Iota को अपन शॉर्ट में I लिखते तो I की वैल्यू कितनी √(-1). So I square is equal to -1 is there. तो इसके प्लेस पे -1 आ जाएगा. तो ये माइनस प्लस माइनस so it is nothing but -4 is there. है ना. I square -1 minus plus minus 1 minus I. तो कितना आ गया बोलो? एक में से 4 गया -3 plus 4i into 1 minus I is there. Okay. Now what happens here? So the next step, multiply these two complex number. We know how to multiply. सबको मालूम है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. -3 का 1 के साथ -3 का i के साथ प्लस का 3i 4i का 1 के साथ it is 4i then plus minus 4i into I it is nothing but 4i square. Okay, so after solving we got here. यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको अपन. ये कितना मिलेगा देखो माइनस का 3i plus 4i it is nothing but 7i. Okay, 3i plus 4i 7i. And now here I square की वैल्यू रहती -1. तो ये माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस. तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे ये हो गया प्लस का 4. Am I right? करेक्ट है. I square की वैल्यू -1 तो ये माइनस क्या हो गया +4. डायरेक्ट 4 लिख दिया हमने. अब बोलो रियल पार्ट क्या है? -3 और 4 दोनों रियल है. तो सबसे पहले 4 में से 3 गया 8
ये आ गया अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉल्व करने के बाद z कितना आ गया 1 + 7i, ये है स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको अपना इसके ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे, और इसका अपन क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट। तो बोलो मॉड्यूलस क्या आएगा इसका। सबसे पहले इसमें a बोलो, a1 b = 7। व्हाट इज मॉड z, अंडर रूट में a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, मतलब कितना हो गया √50। √50 को तुम सॉल्व कर सकते हैं। √50 कैन बी टेन एज इसको ऐसे लिखते हैं, √50 नथिंग बट 25 2 50। तो ये 25 को बाहर निकाला तो ये मिलेगा मेरे को 5√2। सो mod z इज नथिंग बट इट इज माय 5√2 इज देयर। ये आ गया mod z की वैल्यू 5√2 इज देयर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय b कितना है 7 और a कितना है 1। tan इनवर्स ऑफ 7 को अपन फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते, एज इट इज खेल खत्म। तो आंसर कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7 इज देयर। ये है आर्गुमेंट और ये है मॉड्यूलस। सो इट इज आंसर ऑफ दैट वन। तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने के बाद कंपेयर करके a मिलेगा b मिलेगा, then you have to find out mod z of that one, मॉड्यूलस निकालेंगे, फिर उसका हम निकालेंगे आर्गुमेंट थीटा tan इनवर्स ऑफ b by a के हिसाब से। So you got the argument. I hope you got that one. ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। अब तुमको जो क्वेश्चन नहीं आते वो देखो अभी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, अब वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है मगर इससे भी ज्यादा और इंपॉर्टेंट है। देखो अभी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। So now we solve question number 5 is there, question number 3 is there। 3 के बाद 5 करेंगे अपन। अभी मैसेज आया था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, 5 अपन 3 के बाद करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 फिर 5 पे जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सो हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल वन। अब यहां से जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ चीजें मालूम होना जरूरी है इसमें, है ना। कुछ चीजें मालूम होना जरूरी है, मतलब ये सबको मालूम है। देखो बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन आई हैव सेट सम कांसेप्ट रिगार्डिंग दैट वन। देखो सबको मालूम है ये कितना है 0, ये 90 π/2, ये कितना 180। ओके, यस, एनीबॉडी प्रॉब्लम 180, then it is here 3 π/2 or it is nothing but 2 pi is there। पाई माइनस ये सबको मालूम है, यहाँ पे सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहते हैं पॉजिटिव, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता, साइन और कोसेक। थर्ड में कौन पॉजिटिव रहता, टैन और कॉट। और यहाँ पे कौन रहता, सेक, कॉस और सेक। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जैसे कोई बात सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अपन क्या करेंगे पाई माइनस अगर से आया तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट इन दैट वन। पाई माइनस कम्स, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस, पाई से ज्यादा मतलब कहां पे खसक गया 3 पे, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, नाउ 2 पाई प्लस मतलब पहला क्वाड्रेंट और 2 पाई माइनस मतलब चौथा क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके इसमें डिटेल में जाता नहीं, इसका है अपने पास, अभी तो फिलहाल यूज नहीं है मगर ये तुमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर से देखिए, चलो वन साइड बाय साइड देखेंगे अपन, जब तुमको प्रॉब्लम आएगा उस टाइम पे ये कर से बताता। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। अब लेट पहला है कौन सा नंबर बोला था, क्वेश्चन नंबर 3 बताया था मैंने, -8 + 59। इसका भी मॉड्यूलस अब क्या निकालने का है, आर्गुमेंट। सो ये सबसे पहली स्टेप, लेट z इज इक्वल टू -8 + 59। देखो कंपेयर करने से a कितना मिला -8 और b इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे हियर और a इज इक्वल टू -8 एंड b इज इक्वल टू 15 इज देयर। ओके, नाउ फर्स्ट वी फाइंड द मॉड्यूलस। व्हाट इज द मॉड्यूलस, mod z इज इक्वल टू √(-8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। अभी निकाल जब ये कितना आ जाएगा 289। तो ये
कितना आ गया रूट 17 का स्क्वायर रूट, राइट है। मॉडुलस के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हाउ टू फाइंड द थीटा हियर, आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। अब वो जो मैंने चार कंसेप्ट बताया था ना थीटा के, पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, उसका यूज है। देखो हाउ टू यूज दैट वन। अब देखो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड थीटा is given by, so what is the formula here? Theta is equal to tan inverse of b by e। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे ये साइड थीटा इक्वल tan inverse of b by a, तो थीटा is equal to tan inverse of b। b कितना है 15। ये हो गया ना ये क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना शायद, डबल हो गया। सॉरी इसमें तो ये तो क्वेश्चन हो गया ना अपना, मुलं काय सांगत नाही याच्यामध्ये झाला की नाही झाला, तीसरे के बाद चौथा देखेंगे अपन। सॉरी ये क्वेश्चन हो गया ना अपना, डबल डबल हो गया ना, चौथा और पांचवा, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसलिए नहीं कर सकते कि क्या होता है इसमें, देखो जब थीटा तुम निकालेंगे ना तो ये आ गया 15 बाय -8, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया माइनस tan इनवर्स ऑफ 15 बाय 8। ये एक्चुअल सेकंड क्वाड्रेंट में है, पहला माइनस दूसरा प्लस, मगर इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए आंसर हो गया इसका। मगर अब देखो कंडीशन क्या है वही बताना चाह रहा था मैं, कोई बात नहीं आगे लेंगे अपन इसको। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 -3 1 - i, एक्चुअली ये क्वेश्चन है। तो ये कितना आ गया -3 और प्लस का i, तो लेट इट इज नथिंग बट, अभी 2 मिनट हो जाएगा कोई बात नहीं, -3 प्लस i, ये कितना आ गया -3 और b कितना आ गया 1, कुछ नहीं है मतलब कितना है यहाँ पे 1। सो इसका मॉडुलस कितना आ गया -3 का स्क्वायर 9 और ये 1 √10। चल पे करा, अब अपना आ गया, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा अपने को, ये निकालेंगे अपन क्योंकि अपन तीसरा क्वेश्चन हो गया था अपना, चौथा पे करते हैं अपन। The amplitude theta is equal to tan inverse of b by a is there। अब देखो बराबर है इसका कितना है -3 प्लस 3i, मुलांनी सगळे झोपले मला वाटले, -3 प्लस 3i, a3 b3, ये कितना मिला 9 प्लस 9 18, 18 मतलब कितना 3√2, राइट है। सबको मालूम है ना √18 कैन रिटन एज, सी नाउ √18 means 9 into 2 means what, it is nothing but 3√2 is there। ये होगा इसका मॉडुलस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वहां पे देखो, अब हम इसका तो ये देखो इसके समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो क्या होगा कंसेप्ट, -3 into 1 - i में पहले -3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस माइनस बिकम +3i is there, है ना, 3 से मल्टीप्लिकेशन रह गया था, तो इसको कंपेयर करने के बाद a -3 और b कितना मिला 3, बस एक सॉल्व। आता लिसन केअरफुली ना सगळे व्यवस्थित बघायचं काय करता येईल, हे महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे ना। Now this theta is equal to tan inverse of, theta is equal to tan inverse of b by a, b कितना है 3, a कितना है -3, तो ये हो गया theta is equal to tan inverse of 3 upon -3 means -1 is there, tan inverse of -1 ये आ गया इसके वैल्यू। But now tan inverse of -1 it can be written as, अब यहाँ पे तुम लिख के कैसे लिखेंगे देखो, किसी भी इसको अगर से सॉल्व करा तो ये हो गया tan inverse of माइनस एज इट इज 1 के प्लेस पर तुमने लिख दिए 1 -10 π/4, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि tan इनवर्स और ये tan कैंसल, आंसर विल बी द -π/4। अब देखो लिसन केयरफुली है, ये टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछता क्या, आपको देखो यहाँ पे 3/3 -1 आ गया, तो और या फिर बहुत से बच्चों के दिमाग में ऐसा आता tan इनवर्स ऑफ -1 मतलब सर ने बताया कि ये हो गया माइनस हमेशा बाहर निकलता, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये हो गया -π/4, है ना, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू -5, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये एंगल -π/4 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज -3 + 3 आए, इसका मतलब पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, इसका मतलब अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पे मालूम है, माइनस प्लस मतलब कहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पे है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे है नीचे बता देखो
कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे -3 और 3 दिस वन। तो इसका जो एंगल आएगा, इसके एंगल कहां से कहां तक आएंगे हमारे में 90 से लेके 180, π/2 से लेके पाई में आएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद ये -tan और सब मतलब -π/4 आ रहा। तो मगर एंगल कितने में सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब इसका एंगल कितना आना चाहिए 90 से 180 के बीच में कुछ भी एंगल। मगर यहाँ पे -π/4 आ रहा, तो ये एंगल बराबर है क्या? नहीं है। तो इसको हम ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते। -π/4 is wrong. Why it is wrong? Because our complex number lies in second quadrant, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से उसकी रेंज कितनी है 90 से लेके 180 के बीच में कुछ वैल्यू आएंगी, तो उसका आंसर करेक्ट रहेगा। फिर अभी जो -π/4 आया, ये इसके बीच में है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये एंगल गलत है। तो कैसा सही एंगल कैसे निकालेंगे देखो अभी। सो यहाँ पर यहाँ तक एकदम सही है। tan इनवर्स ऑफ -1 करेक्ट है। सो हियर इट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ we can write here sorry we can write here tan inverse of, in place of minus and it is in place of what we can write here tan π/4 is there. What we can write here tan inverse, this minus remain as it is, and in place of 1 we can write here tan π/4 as it is. अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ये tan inverse और tan भी कैंसिल नहीं होगा। अब देखो तुमने tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल करी तो फिर से कितना आया -π/4, और एंगल -π/4 रह सकता क्या? नहीं, क्योंकि तो 90 से 180 के बीच में आना चाहिए। तो मैंने शॉर्टकट बोला था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कहां से सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, तो मैं लिख के जाता कि थीटा की वैल्यू कैसे आएगी π - थीटा। ओके, if the complex number lies in second quadrant π - थीटा, थर्ड में रहा तो क्या करेंगे π + थीटा, फोर्थ में रहा तो क्या करेंगे 2π - थीटा ऐसा। तो देखो यहाँ पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स ऑफ -tan π/4 की जगह पे मैं ऐसा लिखता हूं। यहाँ पे थीटा कितना है मालूम है π/4, तो ये थीटा को क्या करेंगे अपन पाई में से इतना एंगल क्या करेंगे माइनस करेंगे। एक्चुअल ये एलिड एंगल का कांसेप्ट है, मगर एलिड एंगल तुमको अभी मालूम नहीं है, इसकी वजह से मैं तुमको क्वाड्रंट से बता रहा हूं। हा जे बीटा आहे एक्चुअल हा एलिड एंगल नावाचा आहे, ते तुम्हाला अजून माहित नाही, त्यामुळे तुम्हाला ते सोडून मी दुसऱ्या मेथडने दाखवलं की हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो कैसे करेंगे, थीटा किती आला π/4, तो आप क्या करेंगे ये tan ऑफ π - π/4, देखो ना ये कहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या बोले अपन ने थीटा कैसा माइनस करेंगे π - थीटा, तो थीटा कितना है π/4, तो क्या लिखेंगे अपन इसको tan ऑफ π, सेकंड क्वाड्रेंट में त्यामुळे π - थीटा म्हणजे किती π/4। एक्चुअली एलिड एंगल आहे, एलिड एंगल म्हणजे काय tan ऑफ π - थीटाचा फॉर्म्युला असतो -tan थीटा, ये एलिड एंगल आहे। tan ऑफ π - थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, ये अभी कंसेप्ट 1 है अपना पहले पेपर में है, ये चैप्टर के बाद ये लेने वाले अपन। तो अभी के लिए इतना याद रखो, tan के एंगल में 180 है तो क्या आएगा tan आएगा, और पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता माइनस, तो -tan थीटा। या फिर इन शॉर्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए पाई में से इतना एंगल क्या करें अपन ने माइनस करें। अब देखो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे इसका रीजन, इसका रीजन देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ पे tan ऑफ π - थीटा, या फिर ऐसा, ठीक है ऐसे ही सही है, tan ऑफ π - थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। इस कारण से ये पूरा -tan π/4 की जगह पे कितनी वैल्यू आई tan π - π/4, देखो बराबर है tan π - थीटा, थीटा मतलब कितना π/4 इज इक्वल टू -tan थीटा इज इक्वल टू -tan π/4, मतलब ये -tan π/4 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं tan ऑफ π - π/4, ये पूरी की जगह। तो ऐसा करने से क्या होगा, अभी tan इनवर्स और tan कैंसिल, इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 पाई में से 1 पाई गया, कितना बचा 3 π/4। अब ये थीटा बराबर है क्या चेक करो, 3 π/4 मतलब कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय π/4 मतलब कितना 45, तो कितना होगा 45 और 90 135 डिग्री, करेक्ट। 135 डिग्री मतलब 90 से लेके 180 के बीच में है।
और बराबर है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे है सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए एंगल कितना है बराबर 135 मतलब कितना 3 पाई बाय 4 और वी कैन से दैट हियर इट्स 35 डिग्री है राइट है क्या समझा क्या देखो एकदम सिंपल है ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये कांसेप्ट देखो यहां से एक बार किसके समझ में नहीं आएगा तो सी हियर नाउ फ्रॉम दिस वन दिस tan इनवर्स ऑफ as माइनस as 1 के प्लेस पे tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी रहती 1 तो ये 1 के प्लेस पे कितना है पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 अब ये कैंसिल नहीं होगा पहले हम क्या करेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है इस कारण से क्या करेंगे इसको अपन आइडियल एंगल के हिसाब से ऐसे लिखेंगे देखो क्या है आइडियल एंगल क्या है देखो यहां पे tan ऑफ पाई